10 मनोवैज्ञानिक तथ्य जो आपको चौंका देंगे। Welcome to our channel. Today, we're diving deep, and I mean deep, into the fascinating world of psychology. You think you know yourself, you think you know others, but trust me folks, we're about to peel back the layers and get real. Get ready to uncover DS mind-blowing psychological facts that will change the way you see the world. These aren't just trivia tidbits, these are game changers. We're talking about the kind of stuff that makes you rethink every interaction, every decision, every little thing you thought you knew about yourself and the people around you. So buckle up, because we're about to take you on a wild ride through the human psyche. You might want to hold on tight, because some of these facts are going to hit you harder than a ton of bricks. Let's talk about first impressions, folks. You ever meet someone and instantly decide they're a good person based on, well, nothing really? Maybe they have a nice smile or a firm handshake. That, my friends, is the halo effect in action. It's like our brains are hardwired to judge a book by its cover. We see one positive trait, and boom! We slap a halo on them and assume they're practically an angel. Problem is, this little trick of the mind can lead us down some dangerous paths. We let that initial charm blind us to red flags, and before you know it, we're knee-deep in a bad situation. Remember, folks, looks can be deceiving. All right, let's talk about hypocrisy. You know, when someone's actions and their words don't quite add up. We see it all the time, right? But here's the thing, we do it too. We all have beliefs and values, and sometimes we do things that contradict those beliefs. That, my friends, is cognitive dissonance. It's that uncomfortable feeling we get when we're holding two conflicting ideas in our heads at the same time. And let me tell you, the human brain hates discomfort. So what do? We rationalize, we make excuses, we twist ourselves into knots trying to justify our behavior. We'll do anything to avoid admitting we were wrong. Ever heard the saying, safety in numbers? Well, sometimes the opposite is true. The bystander effect, folks, it's a real head-scratcher. It basically says that the more people who witness an emergency, the less likely anyone is to help. Think about it. You're walking down the street, you see someone in trouble. You think someone else must have already called for help, right? There's a crowd. Surely someone's doing something. But here's the kicker. Everyone else is thinking the exact same thing. It's like our sense of responsibility gets diluted in a crowd. We assume someone else will step up, and we become part of the problem. Chapter 4. Confirmation bias. अपनी ही बात का सबूत हम सब सोचते हैं कि हम खुले दिमाग वाले हैं, है ना? कि हम किसी भी राय बनाने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी कॉन्फर्मेशन बायस के शिकार हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में एक फिल्टर है, जो केवल वही जानकारी अंदर आने देता है, जो हमारे पहले से बने विश्वासों की पुष्टि करता है। हम उन समाचार स्रोतों की तलाश करते हैं, जो हमारे राजनीतिक विचारों को सही ठहराते हैं। हम अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं, जो हमसे सहमत होते हैं, और हम किसी भी ऐसे सबूत को अनदेखा कर देते हैं, जो हमारे कीमती विश्वासों का खंडन करता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने छोटे छोटे इको चेम्बर्स में जी रहे हैं, अपने बायसेस को चुनौती देने के बजाय उन्हें मजबूत कर रहे हैं। चैप्टर 5 द प्लेसेबो इफेक्ट। मन की शक्ति दिमाग एक शक्तिशाली चीज है, दोस्तों, और प्लेसेबो इफेक्ट इसका सबूत है। आप किसी को एक शुगर पिल देते हैं और कहते हैं कि यह एक चमत्कारी इलाज है, और देखिए क्या होता है, वे बेहतर महसूस करने लगते हैं। ये पिल के बारे में नहीं है, ये विश्वास की शक्ति के बारे में है। जब हम मानते हैं कि कुछ काम करेगा, तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स और अन्य फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है, जो वास्तव में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर एक वास्तविक, मापने योग्य प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग हमारे शरीर को खुद को ठीक करने के लिए ट्रिक कर सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, दोस्तों, इसे कम मत समझिए। चैप्टर 6 सोशल लोफिंग। टीम वर्क में ढिलाई कभी किसी ग्रुप प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं, जहां किसी ने सोचा कि आराम करो और बाकी सब भारी काम कर लेंगे? हाँ, यही सोशल लोफिंग है। ये मानव स्वभाव है, दोस्तों। जब हम किसी टीम का हिस्सा होते हैं, तो हम अकेले काम करने की तुलना में कम प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सोचते हैं, अरे, कोई और इसे संभाल लेगा। हम जिम्मेदारी को फैलाते हैं, हम पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं, और हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमारे योगदान का वास्तव में कोई महत्व नहीं है। लेकिन बात यह है कि सोशल लोफिंग पूरी टीम को नीचे खींच सकता है। ये एक वायरस की तरह है
जो उदासीनता और औसत दर्जे को फैलाता है। चैप्टर 7 द पिग्मेलियन इफेक्ट। उम्मीदों का असर ये एक दिलचस्प तथ्य है दोस्तों। द पिग्मेलियन इफेक्ट, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के नाम से भी जाना जाता है, कहता है कि हमारी उम्मीदें दूसरों के व्यवहार को वास्तव में प्रभावित कर सकती हैं। सोचिए, अगर एक शिक्षक किसी छात्र पर विश्वास करता है तो वो छात्र सफल होने की अधिक संभावना रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे दूसरों के साथ बातचीत में घुस जाते हैं। हम लोगों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, इस पर आधारित कि हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या लोग उन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, चाहे वो बेहतर हो या बदतर। चैप्टर 8 द स्पॉटलाइट इफेक्ट। खुद पर ज्यादा ध्यान। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कोई आपको देख रहा है, आपके हर कदम का मूल्यांकन कर रहा है, जैसे आप एक विशाल स्पॉटलाइट के नीचे हैं और सबकी नजरें आप पर हैं? यही है मेरे दोस्त द स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये वो कष्टप्रद एहसास है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ध्यान हम पर दिया जा रहा है। हम अपनी खामियों, हमारे अजीब पलों, हमारी समझी जाने वाली कमियों पर ध्यान देते हैं और उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों, लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना हम सोचते हैं। वे अपने खुद के स्पॉटलाइट्स की चिंता में व्यस्त हैं। चैप्टर 9 द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अज्ञान का अहंकार। ये उन सभी जानकार लोगों के लिए है। द डनिंग क्रूगर इफेक्ट दोस्तों, ये वास्तव में एक अजीब चीज है। इसका मतलब है कि जितना कम हम किसी चीज में सक्षम होते हैं, उतना ही हम अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं। सोचिए, ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से अनजान होते हैं, लेकिन वे पहले होते हैं जो अपने विचार जोर शोर से पेश करते हैं। उनमें अपनी असमर्थता को पहचानने की आत्म जागरूकता की कमी होती है। ऐसा लगता है जैसे वे आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हों, अपनी सीमाओं से अनजान। चैप्टर 10 द मियर एक्सपोजर इफेक्ट। परिचित होने का आकर्षण। कभी गौर किया है कि जो गाना आपको पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, वह कुछ बार सुनने के बाद आपको अच्छा लगने लगता है? यही है द मियर एक्सपोजर इफेक्ट इन एक्शन दोस्तों। जितना अधिक हम किसी चीज के संपर्क में आते हैं, उतना ही वह परिचित हो जाती है और हम उसे पसंद करने लगते हैं। ये सिर्फ गानों के बारे में नहीं है, ये लोगों, स्थानों, चीजों, कुछ भी पर लागू होता है। बार बार संपर्क एक परिचितता की भावना पैदा करता है और परिचितता कभी कभी नापसंदगी नहीं, बल्कि पसंद को जन्म देती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग को ज्ञात चीजों को अज्ञात पर प्राथमिकता देने के लिए तार तार किया गया हो। आउटरो, रैप अप दिमाग के खेल। तो दोस्तों, ये रहे 10 मनोवैज्ञानिक तथ्य जो शायद आपकी दुनिया को उल्टा कर सकते हैं। हमने मानव मन के घुमावदार रास्तों की यात्रा की है और मुझे बताना है, यह अंदर एक जंगली सवारी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मानव मन के बारे में और भी रोचक जानकारियां मिलती रहें। हम यहाँ हैं ताकि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा बेहतर समझ सकें, एक मनोवैज्ञानिक खुलासे के साथ। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सा मनोवैज्ञानिक तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हम आपके विचार, आपके आहा क्षण, वह सब सुनने के लिए उत्सुक हैं जो आपको वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दे। अगली बार तक अपने दिमाग को खुला रखें और हर चीज पर सवाल उठाते रहें।